Assalamualaikum everyone. This is Compiler Construction Lecture 15, and this is the recording for the 18th November class for Section A and the 19th November class for Section B. So the topic for this lecture is we are still on the topic of top-down parsers. So the first big category of parsing techniques that we were doing, and we're doing now today we are going to cover a non-recursive predictive parser. So just to quickly recap, हम start इस तरह से हुए थे. So right from the start, we started with tokenization, and then we moved on to the next part of your compiler, which was the parser. और parser इसके अंदर हमने दो बड़े categories देखे थे of parsing techniques called top-down parsers and bottom-up parsers. And over the past couple of lectures, we had been looking at the different techniques that are used in top-down parsers. So we started with top-down parsers के अंदर हमने basically देखा था सबसे पहले तो we saw that we needed to have a grammar that was manageable by the parser algorithms that we're looking at right now. और उसको manageable बनाने के अंदर जो हमने techniques देखी थी वो ये वाली देखी थी कि essentially we want to have something we want to have a grammar जिसके अंदर left recursion नहीं हो, and we want a grammar जो कि left factored हो. And the reason for this was कि आपके पास जो टॉप डाउन पार्सिंग एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं वो बेसिकली जब वो चूज़ कर रहे होते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर उन्होंने कौन से वाले नॉन टर्मिनल को चूज़ करना है व्हेन दे आर गोइंग टू प्रोसीड विद द पार्सिंग. तो हम कह रहे थे कि टॉप डाउन टेक्निक्स के अंदर यू ऑलवेज चूज़ द लेफ्ट वन फर्स्ट, and to be able to handle those techniques you have to make sure, or to be for the parser to be able to handle those techniques you need to be sure कि आपकी ग्रामर इस तरीके से मैनेज हुई हुई है कि उसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन भी नहीं है और उसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग भी हुई हुई है, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रोडक्शंस जिसके अंदर सेम लेफ्ट साइड के ऊपर एक सेम टर्मिनल जो है वो आपको नज़र आ रहे हो, विच काइंड ऑफ मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक अ चॉइस जब आपने बताना हो कि मैंने नेक्स्ट वाला प्रोडक्शन जो रिप्लेस करना है वो कौन से वाला होना चाहिए. सो we looked at the technique जिससे आप or we essentially saw that you need to remove the left recursion, you need to left factor your grammar, और उसके बाद हमने देखा था कि then you can use your grammar and create a recursive descent parser. पहले आपने एक brute force वाला recursive descent का आइडिया देखा था, उसको फिर प्रैक्टिकल करने के लिए we said that we're not going to do the backtracking, we are going to add in some kind of a predictive mechanism. वो predictive mechanism ही इसीलिए implement हो सकता था because you had removed the left recursion and you had make sure that your grammar was left factored, and then you had a recursive descent parser which was predictive, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्शन चूज करते हुए दो चॉइसेस होती थी तो आप एक लुक अहेड देख के पिक कर लेते थे कि मैंने कौन सा वाला इस वक्त रिप्लेसमेंट चूज करना है इस एल्गोरिदम के अंदर. सो इस हमने लास्ट लेक्चर तक वी हैड रीच्ड काइंड ऑफ अ रिकर्सिव डिसेंट प्रिडिक्टिव पार्सर. नाउ वी आर गोइंग टू add on a new technique or an alternative new technique जिसके अंदर आप basically ये करोगे कि you are going to remove the recursive part by inserting a table that is going to help you decide कि next वाला जो आपने replacement करना है of the production वो क्या करना है, and then we're going to end up with the technique that we're going to end up with eventually by removing the recursion is a non-recursive predictive parser. So basically आज का topic है that we're starting today is how is the steps that we're going to need to reach a non-recursive predictive parser. तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले we will do a quick look or we'll take a quick look at the solution to the assignment जो आप लोगों को last time दी गई थी. So assignment 3 was essentially कि आपको ये वाली ग्रामर दी गई थी, the one on the right, and you were told
कि इसका आपने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाना है. सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड ग्रामर, दिस इज द ओरिजिनल ग्रामर. दोनों फॉर्म्स आपको इसलिए दिए गए थे कि essentially the process is that you start from the one on the left एंड देन वो जो पीछे ये वाले स्टेप्स आपको रिवाइज कराए जा रहे थे अभी के, यू नीड टू मेक श्योर कि इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन नहीं हो रही, यू नीड टू मेक श्योर दैट उसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग हुई भी है. इसके अंदर इमीडिएट प्रॉब्लम, इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस ग्रामर, इवन दो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इसको देखने में ये बहुत इंटुइटिव है. अगर आप इसका हैंड बाय हैंड ट्री नहीं भी बनाओ तो यू कैन एक्चुअली फिगर आउट क्वाइट अ फ्यू वर्ड्स दैट यू कैन मेक फ्रॉम दिस ग्रामर एंड यू कैन देन इमेजिन कि इससे और एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स किस किस्म के बन सकते हैं. बट द प्रॉब्लम विद दिस ग्रामर व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ पार्सर इज, और व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग पर्टिकुलरली एक टॉप डाउन पार्सर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, द इशू ओवर हियर इज गोइंग टू बी के इसके अंदर दो इमीडिएटली यू कैन सी दिस प्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर ई इज़ गोइंग टू एन ई प्लस टी विच मीन्स फौरी तौर के ऊपर ये लेफ्ट रिकर्सिव चलती जाएगी. यू हैव टू टेक अ स्मार्ट डिसीजन टू बी एबल टू फिगर आउट कि मैंने किस वक्त ई को ई प्लस टी की बजाय टी से रिप्लेस करके रोक देना, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू कीप गोइंग इन टू द ई प्लस टी ऑप्शन एंड देन द सेम विद द टी गोज़ टू टी इन टू एफ. सो दोनों रिकर्सिव वाले इश्यूज को रिमूव करने के लिए यू ट्रांसफॉर्म योर ग्रामर. सो ट्रांसफॉर्मेशन वी लुक्ड एट द स्टेप्स, बट अगेन इस वक्त हम क्योंकि इसके पार्सर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वी आर सेइंग आपके पास ऐसी ग्रामर ट्रांसफॉर्म होके आपको मिल गई है जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन हट गई है एंड दिस इज़ द वन दैट यू आर वर्किंग ऑन. और इसके ऊपर आप लोगों ने टर्न इन किए थे अपने पार्सर्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अप अ सोल्यूशन that I got from this website. This is the first one that comes up. अगर आप कहो कि मुझे recursive descent parser को सर्च करो तो this is the first one that is going to come up. इसी ग्रामर के लिए होगा और उसके अंदर essentially again आप लोगों ने भी इसी तरीके से किया हुआ है कि recursive descent parser में आपने ये करना है कि you are going to look at your grammar. This is the grammar जिसके ऊपर हमने फोकस करना है और this is the form of the grammar जिसके ऊपर हमने फोकस करना है for the task. And we want to write a function corresponding to each of the non-terminals over here. So non-terminals आपके पास हैं और quick way to recognize the non-terminals is to look at all of the capitals here. ये वाली grammar particularly ऐसे लिखी हुई है कि आपके सारे capitalized वाले letters जो हैं वो non-terminals हैं. So you see them listed over here. एंड बेसिकली ये जो लिस्ट है ये इस ग्रामर के अंदर से आई है बाय पिकिंग आउट ऑल ऑफ द नॉन टर्मिनल्स जो कि आप सीक्वेंस कर सकते हो बाय लुकिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड. तो इसके अंदर एक अप्रोच जो दी गई हुई है, सो दिस इज समथिंग दैट आई वाज आस्किंग एवरीबडी इन योर असाइनमेंट वाइवास कि आपने ये किस तरीके से हैंडल. एवरीथिंग इज प्रीटी मच स्टैंडर्ड ओवर हियर बट एसेंशियली द डिफरेंस दैट वी हैड इन एवरीबडी सबमिशंस वाज कि आपने ये वाला जो आईडी है इसको किस तरीके से हैंडल किया हुआ है. आई हैड गिवन यू अ वे टू हैंडल दिस आईडी. ये वाली जो सोल्यूशन है व्हाट इट इज़ डूइंग टू सिंप्लीफाई द कोड, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि एसेंशियली अगेन इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस फ्रॉम स्क्रैच तो आपके पास आपको एक टोकनाइज़र भी चाहिए था जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर सारे इंडिविजुअल पार्ट्स निकाल के आपको दे और फिर आपको पार्सर बनाने के लेवल तक पहुंच सकते थे. Over here, we're saying we don't want to focus on the tokenization. So the approach that this particular solution has taken is that they've said कि आपके सारे के सारे inputs में जितने भी IDs आएंगे we're just going to call them I. और इसको आप इसको अपने वाले सोल्यूशन के अंदर भी डाल सकते थे बाय जस्ट सेइंग कि जिस जिस जगह के ऊपर आईडी आ रही है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू एन आई एंड देन वी कैन यूज लाइक द इनपुट स्ट्रिंग टू होल्ड ऑल ऑफ आवर input and then we can just go through it by just looking at each individual character और उस character को फिर मैं इस अपना एक टोकन जो है समझ के इस ग्रामर के थ्रू पार्स करने की कोशिश करूंगी. So the simplification again here is कि again to eliminate the need for a tokenizer we are going to say कि सारे लेक्सिम्स जो हैं जो कि आइडेंटिफायर की तरह
कैच हो सकते हैं वो सारे के सारे आए होंगे। उसके अलावा बाकी आपके लेक्सिम्स प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ब्रैकेट होगा जो ई के लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है, और ये वाला ब्रैकेट भी होगा। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी देयर एज वेल, बट वो वैसे ही खुद ही सिंगल कैरेक्टर है, तो दोज आर गोइंग टू कॉज एनी इश्यूज। ये जो आईडी था इसको हैंडल करने का कोई तरीका चाहिए था। सो वी आर डूइंग के, और दिस सोल्यूशन इज डूइंग के, इट्स जस्ट टेकिंग एन आई टू represent the ID, which means you can kind of run the entire parser on this very basic data structure that you see over here, which is basically just a string जिसके अंदर आपका सारा input होगा, and then you have a character pointer. This is an actual pointer, different from all of the other implementations that we've seen, जहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो to actually point to individual elements in your string and to get the individual character out and use it inside your parsing. So this is essentially सबका कोड इसी तरह का था। इस कोड के अंदर important bit is this one कि main के अंदर you're calling your e, और उसके बाद आपके सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स का एक एक आपने फंक्शन बनाया हुआ है। और फंक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन है या फंक्शन के कोड की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ बेसिकली, अगर आपने ई पे फंक्शन लिखा हुआ है तो फंक्शन के अंदर आपने ई की प्रोडक्शन को हैंडल किया हुआ है। सो यू आर सेइंग कि ई के अंदर जाने के बाद टी को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, एंड देन सो ऑन। सो और अगर टी रिजॉल्व हो जाता है, सॉरी, टी रिजॉल्व हो जाता है तो फिर ई डैश रिजॉल्व करने की कोशिश करो। सो अगर टी ई को भी रिजॉल्व कर देता है, ई डैश को भी कर देता है, तो यू आर गोइंग टू से दैट इट्स अ सक्सेस। अदरवाइज यू आर गोइंग टू से कि आपका पार्स फेल हो गया। एंड यू हैव corresponding functions for all of the productions like this. So you have one for e dash, you have one for t, you have one for t dash, and so on, one for f, and essentially this kind of completes your parser. अब हमने बेसिकली ये देखना है कि what options do we have to move on from here. So again ये वाला जो टेक्निक था ये आपके इस पॉइंट तक पहुंच गया था, प्रिडिक्टिव था, रिकर्सिव था और प्रिडिक्टिव था। नाउ वी वांट टू मूव ऑन टू अ नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर। सो व्हाई वुड वी वांट टू डू इट? तो टोकनाइजेशन में तो हमने एक ही टोकनाइजेशन का टेक्निक देखा था, पार्सिंग में हमने स्टार्ट किया, एंड वी आर नाउ मूविंग ऑन टू अ सेकंड पार्सिंग टेक्निक। सो व्हाट इज द रीजन दैट वी वुड वांट अ नॉन रिकर्सिव वन? तो essentially इसके, इफ़ यू लुक एट योर टेक्स्ट बुक या आप सर्च करोगे तो यू आर गोइंग टू सी काफ़ी बड़ी लिस्ट ऑफ रीजंस आती है। वी डोंट वांट टू गो इनटू ऑल ऑफ द निटी ग्रिटी रीजंस, बट बेसिक मेजर रीजंस जो हैं वो आपके ये हैं कि essentially, या सबसे बड़ा रीज़न एक्चुअली इज़ गोइंग टू बी दिस। इमेजिन के यही वाला आपका प्रॉब्लम है जो हमने पीछे सॉल्व किया अभी, जिसकी काइंड ऑफ आउटलाइन ये लिखी हुई है, that this is your grammar and you are going to be making functions for each of these, and then inside each of the individual functions आपने पहले हमने e को देखा था, we can open up e dash right now. So e dash के अंदर आपकी पूरी की पूरी प्लस, फिर t, फिर e dash, और फिर उसके बाद एप्सिलॉन वाला कंडीशन, द स्मॉल e is basically there for the epsilon, एप्सिलॉन वाला कंडीशन रखा हुआ है। सो कैन यू एक्चुअली सी कि आपके पूरे के पूरी ग्रामर जो है, योर कोड इज एक्चुअली जस्ट काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग दैट, विच मीन्स दैट एट एनी पॉइंट अगर मैं सोचूंगी कि आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट डजंट मैटर, बेसिकली सब में वही एग्जांपल आपको नजर आएगा कि एट एनी पॉइंट इफ आई वांट टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज एंड आई से कि मैंने इसके अंदर प्रोडक्शंस ऐड कर दिए या कोई एक आध प्रोडक्शन चेंज कर दिए, तो कैन यू इमेजिन कि मुझे उसके पार्सर को अपडेट करने का आई विल के लिए आई विल नीड टू गो इनटू द कोड एंड आई विल नीड टू अपडेट ऑल ऑफ द प्रोडक्शंस, या मुझे प्रोडक्शन ऐड करनी पड़ेगी या कोई एग्जिस्टिंग फंक्शन मुझे अपडेट करना पड़ेगा। सो एवरी टाइम इफ आई हैव अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर फॉर माई ग्रामर, एवरी टाइम आई इम्प्रूव माई ग्रामर, और एवरी टाइम आई गेट अ रिक्वायरमेंट जिसमें मुझे ग्रामर के अंदर एडिशन डालनी पड़ती है या मुझे किसी तरीके से एडिट करना पड़ता है, तो दैट मीन्स दैट आई हैव टू अपडेट माई एंटायर कोड in order to reflect that grammar. So this is one of the major reasons कि
दिस इज फॉर के लार्जर प्रॉब्लम्स के लिए या ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पर आपका लैंग्वेज जो है वो अपडेट होता जा रहा है ओवर टाइम, दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। रिकर्सिव वाले इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, पार्सर के रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, योर ग्रामर इज एम्बेडेड इन द कोड एंड इफ यू नीड टू अपडेट द ग्रामर यू विल हैव टू अपडेट द कोड। तो एक तो बड़ा रीज़न ये है। उसके अलावा एक और बड़ा रीज़न ये है कि the parser that we're going to see today in the lecture is going to be more efficient than a recursive one, क्योंकि एक तो instantly जो आपको चीज़ नज़र आती है पीछे वाले एल्गोरिदम से, कि आपका फंक्शन है, फंक्शन की कॉल्स जो है ना, दे आर गोइंग टू इंक्रीज मैसिवली। अगर आपका अगेन अगर आपका ग्रामर कोई भी, इस वक्त जो ग्रामर आपको नज़र आ रहा था पीछे, दैट वुड बी समथिंग लाइक अ टॉय ग्रामर, वो कोई बहुत प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कर रही, प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं प्रोड्यूस कर रही। लेकिन एनी टाइम यू एक्चुअली पुट इन अ ग्रामर जो कि एक एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की साइज़ की ग्रामर होगी, तो आपका फंक्शन कॉल का ओवरहेड जो है वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। बिकॉज इसेंशली फॉर एवरी प्रोडक्शन आप एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो, एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो, एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो, एंड एज दीज कीप गेटिंग नेस्टेड ऑन योर कॉल स्टैक, आपके पास स्टैक ओवरफ्लो के एरर्स आने शुरू हो जाएंगे। So this is kind of uh, the new technique that we're going to be looking at. It is going to be much more efficient uh, from a computational perspective. So these are the two big reasons कि आपको different techniques को इस्तेमाल करना पड़ता है for different kind of contexts. So इसका contrasting question कि then why is it that the recursive method is still important enough that we needed to look at it. So basically, from your assignment and from my recap right now, you should kind of have noticed again कि ये जो आपने अभी ग्रामर किया था, कोड किया था इसका, it is very straightforward and intuitive to implement as long as your grammar is simple. So इसको अगर आपने simple tasks के लिए इस्तेमाल करना है तो it is really easy to use. It is going to be very useful अगर आपके पास कुछ custom transformation की tasks हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल अगर आपने सिर्फ ग्रामर अपनी जरा प्रोटोटाइप करके चेक करनी है कि इज इट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी यूजेबल और नॉट. So for the context of kind of using it for things like domain specific languages, जिस तरह का आपको असाइनमेंट 2 के अंदर एक दिया हुआ है, लेकिन वो आपको दिया हुआ था एक लेक्सिकल एनालाइजर के पर्सपेक्टिव से, बट ओवर हेयर इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस लिंक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्मॉल सबसेट के लिए, स्मॉल सबसेट ऑफ अ लैंग्वेज, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एसेंशियली आपका रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इस्तेमाल किया गया एंड उससे एक इमीडिएट सोल्यूशन हैज़ बिकम अवेलेबल. सो इट इज़ वेरी यूजफुल अगर आपका प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर नेचर का हो. सो इट्स अ गुड टूल टू हैव इन योर टूल किट. बट essentially now what we want to do is to see के दूसरे options आपके पास क्या हैं. So our other option right now, the second option that we're moving on to is the non-recursive predictive parser. और predictive parser के अंदर अब ये हो रहा होगा कि again अब parsing नहीं है, sorry recursion नहीं है. So what you're going to do instead is, अब recursion निकल जाएगी तो वो वाला काम करने के लिए instead you are going to have a parsing table. और पासिंग टेबल के अंदर हो रहा होगा कि काम आपने वही करना है. इफ़ यू इमेजिन योर ट्री बीइंग बिल्ट टॉप डाउन फ्रॉम द रूट यूजिंग द स्टार्ट प्रोडक्शन, और उससे आप नीचे की तरफ बिल्ड करते जा रहे हो अपना ट्री, आपने वही वाला सीक्वेंस सिम्युलेट करना है ऑन ऑन अ स्टैक नाउ, जो कि आपने एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किया होगा अपने एल्गोरिथम के अंदर. एंड योर इनपुट स्ट्रिंग दैट इज कमिंग इन, और वो जो आपका स्टैक होगा जिसके ऊपर आप प्रोडक्शंस की रिकॉर्ड को होल्ड कर रहे होगे, उनके बिटवीन मैनिपुलेशंस हो रही होंगी. एंड बेसिकली दैट पार्सिंग टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू फिगर आउट कि अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस स्टैक के टॉप के ऊपर ये वाला प्रोडक्शन पड़ा हुआ है और इनपुट के अंदर दिस इज द इनपुट दैट यू आर कंसिडरिंग राइट नाउ, तो व्हाट ऑप्शन शुड आई take. So parsing table का काम basically ये होगा. So this is a pretty abstract picture. Let us take the same grammar. So ये वाला grammar हम लेंगे, sorry, grammar हम यही वाली लेंगे. Left recursion remove करेंगे. We're still doing top down parsing. We're just doing a different technique for top down parsing.
तो हम ये कह रहे हैं कि आपका रिकर्जन हट गया, एंड वी हैव दिस टेबल हेयर दैट यू सी, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ लाइक दिस. वी आर गोइंग टू इमेजिन कि आपके पास टेबल काइंड ऑफ कहीं से अपेयर हो गया, एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि पहला स्टेप होगा, वी वांट टू सी कि ये टेबल यूज कैसे होना, एंड देन वंस वी आर क्लियर ऑन दैट, वी आर देन गोइंग टू सी कि ये टेबल बिल्ड कैसे होता. सो द kind of more complex part of this, or the crux of this lecture, is to see कि essentially ये टेबल बिल्ड कैसे होना है. बट बिफोर दैट टेबल इज बिल्ड, we want to see कि वो टेबल इस्तेमाल कैसे होगा, and how your process is going to proceed. So essentially what is happening again, we are starting from the same grammar. Yeah. Parser टॉप डाउन ही है. सो इफ वी वांट टू डू अ टॉप डाउन पार्सर, हमने इसके अंदर से अपना आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्टार्ट सिंबल कौन सा है फ्रॉम दिस ग्रामर. एंड अगेन नॉर्मली होता है कि आपका पहले वाला जो प्रोडक्शन लिखा होता है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर स्टार्ट सिंबल. सो यू कैन डिड्यूस, और आई कैन टेल यू, और हुएवर इज गिविंग यू द ग्रामर विल टेल यू कि आपका स्टार्ट सिंबल फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ई है. सो वी आर गोइंग टू हैव अ स्टैक इन आवर एल्गोरिदम, और उस स्टैक के ऊपर आपने ई को प्लेस कर देना है, और एंड के ऊपर आपने एक डॉलर साइन डाल देना है, बिकॉज बेसिकली इसके अंदर आपने अपना इनपुट ऐसे हैंडल करना है दैट एट द एंड ऑफ योर इनपुट यू आर गोइंग टू पुट इन अ डॉलर. सो आपके इनपुट के एंड वाला डॉलर साइन आपने यहाँ डाला हुआ है, और अपने स्टैक के ऊपर स्टार्ट सिंबल के साथ आपने एक डॉलर साइन डाल दिया, ताकि बेसिकली यू कैन देन से कि जब आप डॉलर इस स्टैक के ऊपर भी डॉलर और इनपुट के ऊपर भी डॉलर साइन के ऊपर पहुंच जाओगे, तो दैट विल बेसिकली सिग्निफाई कि आपका इनपुट जो है वो प्रॉपर तरीके से पार्स हो गया है. सो वी आर गोइंग टू सेट आवर सेल्फ अप. अभी लाइक आई विल एक्सप्लेन द टेबल राइट नाउ, बट लेट्स सी हाउ वी वांट टू सेट आवर सेल्फ अप टू प्रोसीड विद द टॉप डाउन पार्स. इज स्टार्ट सिंबल इधर रखना स्टैक पे, क्रिएट अ स्टैक इन योर कोड एंड हैव योर स्टार्ट सिंबल देयर. उसके आगे काइंड ऑफ एक ना प्लेस होल्डर आपने डॉलर साइन रख देना, और अपने इनपुट स्ट्रीम के अंदर वट एवर इनपुट दैट यू आर गेटिंग उसको डाल देना. इधर हम रिपीटेडली सेम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स लाइक आई आस्क्ड फॉर यू टू बिल्ड ड्यूरिंग योर वाइवास वो आप डाल सकते हो, बट दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन इनपुट स्ट्रिंग्स दैट यू कैन क्रिएट फ्रॉम दिस. तो आपने डाल दिया. अदरवाइज फॉर इंस्टेंस आपने प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट फिगर आउट what other strings are possible. So brackets वाले डाल दो या कुछ, and then you can resolve them using the same process that I'm going to be following right now. So stack रखा हुआ है, इनपुट रखा हुआ है, एंड देन आई एम गोइंग टू से कि आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग माई रिप्लेसमेंट्स. सो पहले मैं रिप्लेसमेंट्स ऐसे कर रही थी कि मेरे कोड के अंदर फंक्शंस के अंदर वो रिप्लेसमेंट्स एम्बेड हुई हुई थी. नाउ माई रिप्लेसमेंट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस टेबल. सो ऑन माई स्टैक आई हैव एन ई, एंड इन माई इनपुट आई हैव एन आई डी. सो इन माई टेबल आई एम गोइंग टू सी आपके पास कॉलम के अंदर सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स पड़े हुए हैं, और इस रो के अंदर आपको सारे के सारे टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं. दिस इज हाउ द टेबल इज गोइंग टू बी सेट अप व्हेन वी सी कि इसको सेटअप कैसे करना है. बट राइट नाउ यू कैन काइंड ऑफ सी, आपने देखना है इधर आपके पास ई है, इनपुट में आपके पास आईडी है. यू आर गोइंग टू लुक दिस अप इन योर टेबल कि आपके पास ई और आईडी वाले सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है. यू हैव द प्रोडक्शन विच इज ई गोज टू टी ई डैश, एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट प्रोडक्शन, एंड दैट प्रोडक्शन की एप्लीकेशन के बाद इसेंशियली आपके स्टैक के ऊपर ई इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई टी ई डैश, और इनपुट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, क्योंकि आपका एक नॉन टर्मिनल दो डिफरेंट नॉन टर्मिनल से रिप्लेस हो गया. सो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द सेम, इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन द सेम वे. आपके पास स्टैक के टॉप के ऊपर टी पड़ा हुआ है और इनपुट के टॉप के ऊपर आईडी पड़ा हुआ है. सो टी और आईडी को अगर आप सेल अपने टेबल के अंदर लुकअप करते हो, so T and ID, you get this production. T goes to FT. If I check my next replacement, it is T goes to FT. और मैंने अपने स्टैक के ऊपर T वाले बिट को FT से रिप्लेस कर दिया. E डैश मैंने वैसे ही FT डैश से रिप्लेस किया. E डैश को मैंने वैसे ही कैरी ऑन डाउनवर्ड्स कर दिया, और ये मैंने एज इज कॉपी कर दिया, बिकॉज अभी तक मेरे जो जितने भी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं वो मोर नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इनपुट को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, एंड दिस बेसिकली जस्ट मीन्स दैट आई एम सेइंग कि पहले मेरी ये प्रोडक्शन लगी फिर ये प्रोडक्शन लगी, आउटपुट कर रही हूँ. आई कैन डू एनीथिंग आई वांट विद देम, बट इसेंशियली यहाँ पर जो लिस्ट बनेगी ना दैट इज गोइंग टू हेल्प मी क्रिएट द ट्री, जो कि हम अभी एक्चुअली बना नहीं रहे.
So next one, so now you should kind of see the repetition in the process. uh, F को मैं F को देखूंगी और ID को देखूंगी, and I'm going to see that I have this F goes to ID replacement being suggested from my table. And F वाला part, by applying this production, F वाला part ID के साथ replace हो गया, and यहाँ पर मैंने इसको copy down किया, and now I can see कि मेरे पास situation थोड़ा different आया है. I have an ID over here and I have an ID over here, which means कि मेरे पास कुछ part of the input match हो गया. So I can basically say, and I have a matched column in my working, so I can say कि मैंने ID match कर दी है, बाकी जितना कुछ remaining है वो मैंने copy down किया. And then I'm going to repeat the same process. I have a T dash and I have a plus. So T dash and a plus is pointing me to T dash goes to epsilon. T dash goes to epsilon. Oops. Let me just pause this for a second. Okay. So now you're going to match the E dash to the plus, and you're going to see कि अगर आप E dash और वाली रो और प्लस वाले कॉलम के अंदर जाते हो, ई डैश वाले रो और प्लस वाले कॉलम के अंदर जाते हो, तो यू आर गोइंग टू सी ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश. सो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्शन. यू आर गेटिंग अनदर मैच हेयर. सो स्टैक के ऊपर भी प्लस आ गया और इनपुट के ऊपर भी प्लस आ गया. So I will match the plus on my stack to the plus on my input. And I'm going to move that on over to my matched column. And then I have the T and the ID to match. So T को मैं लुकअप करूंगी अपने टेबल के अंदर और ID को मैं लुकअप करूंगी अपने टेबल के अंदर. दैट इज गोइंग टू गिव मी द T goes to F T dash का replacement. I will then look up now. So it is now you can see that it is quite repetitive and systematic. So F और ID को आपने लुकअप करना है टेबल के अंदर. F और ID को लुकअप कर रहे हो तो F goes to ID. You are going to see another opportunity to match your input with what you have on your stack. So you are going to say match के ऊपर ID को भी add कर दें. And so we've just skipped two transitions, but essentially I think you've picked up what you should have picked up what is going on by now. ये वाला हमने मिस किया था essentially, but now we have a asterisk and an asterisk over here, जिसको हम कह सकते हैं कि ये match हो गए. And then we have an F and an ID. So again we are going to say कि आपकी F goes to ID वाला production लगाओ. We can see there is another match, and then you have a T dash and an E dash. So you are going to essentially, ये वाला मुझे skip नहीं करना चाहिए था, but essentially let me just move this down. जो dollar sign है essentially, because we've put that in as a dummy, we've also created a column for this और हम इसको treat कर रहे हैं as a terminal, but essentially this is not a terminal in my grammar. ये मैंने बस एक ज़बरदस्ती kind of insert किया so that I can create an end to my production. So essentially जब मैं इस वाले प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचूंगी तो आई एम गोइंग टू डू अ टी डैश मैच विद द डॉलर, जो कि मुझे एप्सिलॉन वाली स्टेटमेंट दे रहा है, तो टी डैश भी ख़त्म हो जाएगा. देन आई एम गोइंग टू डू एन ई डैश मैच with the dollar, and that is also giving me an epsilon statement. And I'm going to be able to uh, kind of um, remove both of these, and I'm going to be able to say कि इसको end के ऊपर I am going to have a dollar left on my stack, and I'm going to have a dollar left on my input. And ये जो last वाली दो चीज़ें, these are going to help me decide कि मेरा पूरा का पूरा parse जो है वो complete हो गया है. And I can say कि ये वाला जो मुझे आपने input दिया था, this is parsed through my grammar, and these are the productions that have led me to this sentence. So basically I can say कि इस information को इस्तेमाल करके I can create an entire parse table
a parse tree like the one that you draw by hand. So next thing that we want to see about this is कि ये हम सारा प्रोसेस तो कर लिया, and hopefully you would have seen कि this is quite a straightforward process for you to follow, और ये आपके पार्सर की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना is going to be computationally, it is going to be much more efficient than using the recursive descent parser. The thing that we missed here, which is again the actual thing that we want to see for this lecture, is कि जो मैंने पहले कहा था कि ये parse table कहीं से आ जाएगा, how are we actually going to obtain this parse table? So that is going to be what we're going to proceed to next. So let me just do a break on the video and we will continue to see कि आपने ये वाला parse table जो है इसको प्रोड्यूस किस तरीके से करना है.